Civilization to freedom. It is the journey of how human beings evolved from old civilization to build new societies, from basic survival to structure new systems, from chaos to culture, language, art and knowledge. सभ्यता हमें जड़ें देती है, सभ्यता हमें जड़ें देती है और स्वतंत्रता हमें उड़ान। और जब दोनों एक साथ चले तो मानवता अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में खिल उठती है। But this journey did not stop there, because civilization, while it brought order and progress, also brought boundaries, limitations and expectations. And from these limitations, we emerged a new desire, the desire for freedom. Civilization teaches us how to live. Freedom teaches us why we live. Civilization is our foundation. Freedom is our flight. So with pride in our voices and excitement in air, we begin this beautiful journey together. As we move from history to hope, from structure to soul, from civilization to freedom, with a huge round of applause. Let the celebrations begin. We promise you a day of unforgettable performances. Coming up is a performance that celebrates the pride of our nation, our Himalayas, our heritage, our strength. राधा की भक्ति सीता का त्याग, राधा की भक्ति सीता का त्याग, राम का साहस और श्री कृष्ण जी की मुस्कान, इनसे पवित्र कोई मार्ग नहीं, इन्हीं से बसता है सच्चा हिंदुस्तान, इनसे बसता है सच्चा हिंदुस्तान। भारत एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में हिमालय उसके ताज के रूप में शोभायमान है, तो दक्षिण में सागर उसके चरणों को पखार रहा है। जिस पुण्य धरती पर श्री राम जी ने जन्म लिया और श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया, ऐसा देश कहीं और कहाँ? Close your eyes for a moment and imagine standing at the top of Himalayas, feeling the breeze of courage and the sunlight of hope. That feeling will come on the stage now. Please welcome our performers with a huge round of applause.
of Indus Valley civilization. Those lovely, glorious days. How I wish I can relive them. Who is this? Who spoke? Oh, look, a unicorn. What? And which days are you talking about? I'm talking about the most marvelous civilization that existed here. A civilization that boasts of a very rich architectural beauty and splendor. A civilization that shows the spiritual heritage of India in its full pinnacle. Yes, let me take you back to the world of the Indus civilization, into the city of Mohenjo-daro, which in no way was less than a modern day world in terms of art, architecture, trade and infrastructure. Congratulations to all of you. Glory to Mohenjo-daro. We have finally solved our problem. Finally, a dam is built for us. It's a day to rejoice and relax. A dam? You mean to say a barrier that would stop and restrict the flow of water? Or underground streams that usually give us many sleepless nights? Yes, my dear friends, a dam which will not only suppress floods but will also provide us with water for activities such as irrigation, human consumption, industrial use, aquaculture, and navigability. This dam will always protect us from the fury of the mighty Indus. That's indeed very good news. Now with all intellect water or even stored, which can be evenly distributed between locations, we all are now safe and can sleep peacefully. And you, my friends, dams generally serve the primary purpose of retaining water, while other structures such as floodgates are used to manage and prevent water flow into specific land regions. Doesn't this news call for a celebration? It's time to forget our worries and enjoy. No more floods, no more water to be afraid of. Let's celebrate a new beginning, a new hope.
दशमलव प्रणाली तक ज्ञान विज्ञान का महादान वैदिक काल के ऋषियों मुनियों से मिला। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य का विचार दिया और उसके मूल सिद्धांतों को पेश किया, और फिर आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का आविष्कार किया और यूं सारी दुनिया को गणित का उपहार दिया। वेदों ने हमें संस्कृत जैसी दिव्य भाषा दी जो पारसी समेत सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, वो भाषा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उपयोगी है। ऋग्वेद ने हमें लगभग 5000 साल पहले योग दिया, जिसने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक के बीच सामंजस्य स्थापित किया। वेदों ने ही विश्व को न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा और वेदांत जैसा महान दर्शन भी दिया। एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा, राजा या सम्राट का युग था जिसे आज भी उसके शौर्य, पराक्रम तथा जीवन के परिवर्तन का युग कहा जाता है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष आज भी सम्राट अशोक के नाम से जानता है। ये महागाथा आरंभ होती है कलिंग विजय महान सम्राट के हृदय परिवर्तन से। कलिंग पर आक्रमण कर अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं वर्तमान की सीढ़ियों से उतरकर उस कालखंड में जहां वो क्रूर चंड अशोक से धम्म अशोक बने। मेरा संसार में कोई नहीं, मैं आपसे जीवन नहीं
मृत्यु मांगने आया हूँ महाराज, मृत्यु मांगने। मुझे मृत्यु दे दो महाराज, मुझे मृत्यु दे दो। संपूर्ण भारतवर्ष कहता है अशोका है अशोका, अशोका है अशोका।
What an enchanting performance. लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है। उठी है घनन घनन, उड़ा बवंडर सनन सनन, गूंज पड़ी है झनन झनन। पास नहीं तू फटक फटक, आग नजर में खटक अटक। तारे गंजा में भवानी और तन पे केसरिया, ओ पृथ्वीराज चौहान, क्षत्रियों की आन बान, वो देश का स्वाभिमान। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर हेतु आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि हम अवश्य आएंगे। इधर स्वयंवर की धूमधाम से तैयारी हो रही है। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर द्वार पर खड़ा कर दो, ताकि सब जान सके कि पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि आपके अपमान के उद्देश्य से जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में हम अवश्य जाएंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। ये सब क्या है? मुझे कहाँ लेके जा रही हो हंसवी? आप पहली बार राजस्थान आए हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान के अलग अलग रंग।
महान है। सबसे चोखा मारो राजस्थान है। सिख धर्म ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी, उन्होंने गोइंदवाल साहिब की स्थापना की। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी, उन्होंने श्री अमृतसर साहिब शहर बसाया। पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की उसारी का काम करवाया अते श्री आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने मीरी भाव अध्यात्मिकता अते पीरी भाव राजनीतिक अते सैनिक शक्ति का सुमेल किया। सत्तवें गुरु श्री गुरु हर राय जी, उन्होंने सेवा अते दया का महत्व दस्या। अठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी, उन्होंने दिल्ली विच महामारी फैलन समय लोगों की सेवा की अते बीमारी ठीक करन लई पवित्र सरोवर का निर्माण करवाया। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की राखी लिए महान कुर्बानी दी, इसलिए उन्होंने हिंद की चादर कह के सन्मानिया जाता है। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की साजना की, उन्होंने देश, कौम ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
सुन लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले अंग्रेजों की छाती पे फिर गाड़ दिया उनके पद जिन पे चले भगत सिंह राजपथ बिस्मिल और वीर सावरकर श्रद्धानंद श्याम जी कृष्ण और प्रेमचंद गुरु दत्त जैसे कलम कारीगर लेख राम या मदन लाल फिर लाला हरदयाल भक्त दर्शन सबको करतार शराबा या हंसराज हो परमानंद या राजगुरु सबको सनातन दिशा दिखाई नीरा आर्य गोविंद रानाड़े को सत्य की शिक्षा सिखाई भारत भूमि को जीवन अर्पण मास भूम को मान कर सत्य सनातन दिया परिचय भगवान आया मान कर दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। इस मिट्टी का आदर मुझ में मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ मैं नए भारत का चेहरा मैं नए भारत का चेहरा मैं बेटी की मुस्कान में हूँ मैं नारी के सम्मान में हूँ मैं बेटी की मुस्कान में हूँ मैं नारी के सम्मान में हूँ विज्ञान में और किसान में हूँ हर वीर में और जवान में हूँ मैं सीमाओं का पहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा मैं नए भारत का चेहरा अब चांद पे पांव जमाना है सूरज से आंख मिलाना है एक नया सवेरा लाना है संकल्प नया दोहराना है न ठहरा था न ठहरा हूँ न ठहरा था न ठहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ
turn from there to happier news. What happier news than the fact that in these COVID times, the world's biggest sporting event, the Olympics, will begin tomorrow in Tokyo. यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है. The Olympic Games have finally begun. 11,500 athletes have reached Tokyo. This is yet another bronze coming for India after PV Sindhu and Lavlina Borgohain. The men's hockey team are on the podium. Bajrang Punia has won India another bronze medal. Great news that came in from Tokyo this morning of javelin thrower Neeraj Chopra qualifying for the finals. बहुत ही बड़ी खबर, गोल्ड मेडल जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने. जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है. कितनी दफे इस दरवाजे पे दस्तक दी है इस भारतीय टीम ने, निराश होकर लौटी है. 2005 में, 2017 में, 2025 में उस दरवाजे को तोड़ दिया है इस टीम ने. ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस 2025 टीम इंडिया आज अपने बैच पर एक सितारा लगाया है. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Award for 2024 goes to the Indian Space Research Organization, ISRO.
such an heart-throbbing performance. It needs a huge and thunderous जन्म लिया गुरुआं ते पीरां ने, योद्धियां ते वीरां ने, ओए संतां ते फकीरां ने, रांझे ते हीरां ने। कहंदे पंजाबी अपनी पंजाबी रचनावां नूं करना खूब जाणदे ने, सो मैनूं माण है ना मुशपुट गबरूआं ਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ जो आप जी दी नजर करन जा रहे ने पंजाब दा प्रसिद्ध लोक नाच, पंजाब दा माण, पंजाब दी शान, भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। होवे लखा चुप शान दस्तार करके होवे चैन नाल रोटी खावदा सौ रब दी सिर्फ सरदार करके।
जट थल्ले नहीं आउंदा कोई दर्जी ओए उनी बहुता हुंदे आ भगवान दी ओदी नाग दी तकिया दा तेरे तो दर्जी फिर लीडर आया नुनी गल जगण दे जदों भज्जी फिरे लगा विच डंग मारदी चले तो मानवता अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में खिल उठती है। But
this journey did not stop there because civilization, while it brought order and progress, also brought boundaries, limitations and expectations, and from these limitations we emerge a new desire, the desire for freedom. Civilization teaches us how to live. Freedom teaches us why we live. Civilization is our foundation. Freedom is our flight. So with pride in our voices and excitement in air, we begin this beautiful journey together as we move from history to hope, from structure to soul, from civilization to freedom with a huge round of applause. Let the celebrations begin. We promise you a day of unforgettable performances. Coming up is a performance that celebrates the pride of our nation, our Himalayas, our heritage, our strength. राधा की भक्ति सीता का त्याग, राधा की भक्ति सीता का त्याग, राम का साहस और श्री कृष्ण जी की मुस्कान, इनसे पवित्र कोई मार्ग नहीं, इन्हीं से बसता है सच्चा हिंदुस्तान, इनसे बसता है सच्चा हिंदुस्तान। भारत एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में हिमालय उसके ताज के रूप में शोभिमान है, तो दक्षिण में सागर उसके चरणों को पखार रहा है। जिस पुण्य धरती पर श्री राम जी ने जन्म लिया और श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया, ऐसा देश कहीं और कहां? Close your eyes for a moment and imagine standing at the top of Himalayas, feeling the breeze of courage and the sunlight of hope. That feeling will come on the stage now. Please welcome our performers with a huge round of applause. वंदे
जहाँ शाम ने, वो गीता सुनाई जहाँ शाम ने।